Good morning, students. Today's topic in environment science is soil erosion. Soil erosion means जो हमारी fertile land होती है, मिट्टी होती है, उसका जो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है वो जैसे इरोड होता है तो उसको हम बोलते हैं soil erosion. Okay. So soil erosion means that when the top layer of the soil is the vital component as it include all the nutrients required by the plants. Hence, the top layer of soil is called to be the feeding zone of plants. This fertile top soil is most valuable natural resource. It usually lies at most places at a depth of 15 to 20 centimeter over the face of the land. Soil is not a dead inert matter of mineral. Instead, healthy soil is indeed alive and dynamic, consisting of microorganisms, bacteria, fungi, algae, protozoa, worms and insects. तो सॉइल केवल मिट्टी नहीं होती है, मिनरल्स से भरा हुआ मैटर ही नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, worms and insects. Soil erosion is not a new thing. It is natural process and is as old as the earth itself. तो जब जब से लैंड है, जब से अर्थ है, तब से सॉइल है. ओके, ये कोई सॉइल इरोजन, तब से सॉइल है, तब से ही सॉइल इरोजन भी हो रहा है. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग. The problem far exceed natural formation of soil. It should be kept in mind that it takes approximately 500 to 1000 years for an inch of the top layer of to build up. तो जिस तरह से वाटर साइकिल है और जिस तरह से हमारे जो प्लांट्स और फॉरेस्ट हैं और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको रिक्रिएट होने में 1000 years लग जाता है, उसी तरह से जो हमारे वैल्यूएबल सॉइल है, टॉप लेयर है सॉइल की, उसको प्रोड्यूस होने में भी 500 से 1000 years लग जा रहे हैं. Therefore, soil has to be protected and soil erosion should be prevented. But in several ways, this fertile topsoil is lost and wasted. So, according to Odum, the soil erosion is a part of soil pollution, and according to Rama Rao, soil erosion is a creeping death of the soil. तो मेनली हमने यही देखा कि soil erosion means that the erosion or vanishing of the top layer of soil. क्योंकि जो टॉप लेयर है वही फर्टाइल होती है, वही वैल्यूएबल होती है, वही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है. Then the nature of problem. The problem of soil erosion is throughout the world. In USA, over 77 million acres of land has become seriously eroded. ओके, ये केवल इंडिया में ही नहीं है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, थ्रू आउट द वर्ल्ड. यूएस में भी है और कंट्रीज में भी है. इट इज reported that after the rain begins, the cream of soil is skimmed off with every spell of showers. तो जो ये हमारी जो सॉइल है, ये इसकी जो क्रीमी लेयर है, ओके, रेन की वजह से क्या हो रही है, स्पेल ऑफ हो जा रही है, ये हट जा रही है. The gravity of the problem of soil erosion may become evident from the face that of all potentially arable land, only about 44% is under cultivation. The rest 56% is unsuitable for farming due to inherent soil problems and man-induced problems. Only about 2.5 million square meter arable land is irrigated at great cost and with many side effects. Okay, massive irrigation is harmful to fertility due to salinization, जो जैसे कि हमने पहले भी वाटर लॉगिंग और सैलिनेशन की प्रॉब्लम को पढ़ा था. तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तब भी सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है और सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो क्या होती है, लॉस में जाती है. By that time, the world population will reach 8 billion, even if another 300 million hectare of the land, which is at present lying unused, is brought under farming. The net result will be that the area of farmland per person will
dwindle from 0.31 to 0.15 हेक्टेयर। तो जैसे जैसे हमारा इरिगेशन इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर की वजह से भी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और सॉइल इरोड हो रही है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, मृदा का अपरदन जिसको कहते हैं। ओके, तो काइंड्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो पहला है इसमें नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन। ये नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस की वजह से होता है, ये मैन मेड नहीं होता है, इसमें मैन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें इक्विलिब्रियम होता है लॉस का और बिल्टअप का, क्योंकि अगर जो टॉप लेयर है वो डिक्रीज हो रही है, तो टॉप लेयर डिक्रीज हो रही है, तो साथ के साथ बिल्टअप भी हो रही है, तो इसमें ये स्लो प्रोसेस है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस से कोई बहुत मेजर डिस्टर्बेंस नहीं होता है बाय द फॉरेन एजेंट्स। दूसरा होता है एक्सीलरेटेड सॉइल इरोजन, दैट इज मैन मेड एंड रैपिड आल्सो। दिस टाइप ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल इज वेरी रैपिड and never keep pace with the soil formation. This is generally caused by an interference of an agency like man and other animals. Overgrazing की वजह से, आपको पता है कि एनिमल की ओवरग्रेजिंग की वजह से भी होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है, मैन मेड एग्रीकल्चर फार्मिंग की वजह से भी होता है। देन विंड इरोजन, जो जो विंड इरोजन है, जैसे आंधी तूफान होता है उस समय भी सॉइल इरोजन होता है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। Soil erosion by wind is commonly in dry, arid regions. Two characteristics of such regions are the soil is chiefly sandy, जैसे कि जो डेजर्ट वाले एरियाज है राजस्थान गुजरात के। Okay, the vegetation is very poor or even absent. In India, erosion by wind affects approximately 50 million hectares of land, most of which is in Rajasthan. The wind erosion also is triggered by the destruction of natural vegetation, cover of land by overfelling and overgrazing. When the topsoil is laid bare with the fury of strong gales, it begins to be blown off in the form of dust storm and sandstorms. The high velocity winds ब्लो अवे द सॉइल पार्टिकल, तो वही कि बहुत तेज वेग में जब आंधी तूफान आता है तो उससे क्या हो रहा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी साथ में उड़ जा रहे हैं, टॉप लेयर जो वैल्यूएबल सॉइल मैटर है वो उड़ जा रहा है। ओके, वो ब्लो अप हो जा रहा है। तो सल्टेशन टेक्स प्लेस इन द एरिड रीजन्स वेयर rainfall is low, drainage is poor, high temperature prevails, water evaporates quickly leaving behind the salts। तो जो हमारी जो लैंड जो सॉइल है उसमें सॉल्टेशन आ जाता है, क्योंकि रेनफॉल नहीं है वहाँ पर, ड्रेनेज नहीं है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो उसमें क्या है कि वो सॉल्ट रह जाता है। सॉल्ट्स आर नॉर्मली क्लोराइड सल्फेट्स, तो इसी प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं। इट डजंट मीन कि हम सिर्फ खाने वाले नमक की यहाँ पे बात करें, उसमें क्लोराइड तो है ही है, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट मतलब जो केमिकल मिक्सचर है उसको यहाँ पे सॉल्ट कहा गया। ओके, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सच सॉल्टी सॉइल इज कैरिड बाय द विंड इन द form of small leaves. These leaves are created by direct pressure of wind on small particles of soil. Landslide or slip erosion. Now this is another type of soil erosion. जब landslide होता है या जो हमारे जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं वो स्लिप करते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल का इरोजन हो रहा है। द हाइड्रोलिक प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल इंक्रीजेस द वेट ऑफ द रॉक्स एट क्लिप्स। तो यही है कि जो रेनफॉल हो रहा है तो उनके अंदर पानी भर जा रहा है, जो हमारे रॉक्स हैं, माउंटेन्स, हिली एरियाज है, वहाँ पे क्या वाटर उनका हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, तो वेट इंक्रीज हो जा रहा है, तो उससे वो इतने हैवी हो जा रहे हैं कि वो स्लिप कर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट दे कम अंडर द फोर्स एंड फाइनली स्लिप और fall off. Sometimes the whole hillock may slide down. Stream bank erosion. अब ये दूसरे तरीके का इरोजन है, स्ट्रीम बैंक इरोजन। ओके, so the river during the floods splash their water against the banks. तो
जो हमारे रिवर बैंक्स हैं वहाँ पर भी सॉइल इरोजन बहुत होता है, क्योंकि जब फ्लड आ रहा है रेन हैवी रेनफॉल की वजह से, तो जो रिवर बैंक पर जो रिवर का वाटर है उसके साथ में बहुत ही फर्टाइल लैंड जो है, जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है. In this way, the water gravitational cuts through them, particularly at curves, water strikes with great speed and the bank caves in alongside. This type of erosion is known as the riparian erosion. So, इंडिया में सॉइल इरोजन की बहुत ही फ्राइटनिंग पोजीशन है, बहुत ही भयावह स्थिति है. अकॉर्डिंग टू द तिवारी कमेटी of the total land of 304 million hectare of India, about 175 means आधे से भी ज्यादा million hectare are exposed to serious environmental threat. This area is suffering from degradation of various kinds. The main cause are water and wind erosion besides waterlogging. ये तीन मेन कॉज है इंडिया में. एक वाटर एंड विंड इरोजन हो गया आपका, कि वाटर मीन्स रेनफॉल की वजह से, या जो रिवर बैंक पर जो है उसकी वजह से जो इरोजन हो रहा है. वाटर लॉगिंग है और विंड इरोजन. ओके, वाटर एंड विंड इरोजन alone has affected 150 million hectare of fertile land. Our entire cultivated area is only 160 million hectares. In this way, it becomes clear that our degraded land is more than all our arable land put together. It is evident from the report of NCEPC that India was losing more than 6,000 million tons of topsoil per year in 1972, which is in terms of major nutrients NPK alone, represents an annual loss of rupees 700 crore. तो ये इकोनॉमिक लॉस भी है सॉइल इरोजन की वजह से, क्योंकि अगर टॉप लेयर जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है, जो फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंटेन करती है, तो अगर वो हट जाती है तो उसकी वजह से फार्मिंग पर भी इफेक्ट आता है, और दैट अकाउंट्स फॉर an annual monetary loss of rupees 700 crores. Today the loss is many times more. It is our duty to identify the areas of maximum concern and the means to check damage in these areas. So that's it about today's lecture, students. Thank you very much.